This is an ABP Life podcast. Alright, so I tasted alcohol for the first time last year during my graduation party. I had a mug of beer, which I had to drink under peer pressure. Couldn't drink more than half of the mug. The taste particularly felt like I was drinking some 10-year-old black coffee, which had no sugar whatsoever. Not much of a drinker, you see. But I saw my super seniors chugging mugs after mugs of beer, enjoying that foul-tasting drink. And I don't know how. One of my close friends is studying in IIM Ahmedabad. It was his dream to study at IIM. But Ahmedabad was not his top choice. He's a full-on drinker. But Gujarat being a dry state, he has become dry there as well. Every time he comes home for vacation, he's wasted most of the time. I really don't get it. What do people get with drinking alcohol? No idea. Now you might be wondering, why am I suddenly talking about alcohol today? Is the newsman drunk? Oh, absolutely not. I'm not drunk at all. But in Bihar, more than 70 people lost their lives due to drinking spurious liquor, due to drinking hooch. And this is not the first time. Hundreds have died in Bihar due to consumption of spurious liquor over the years in the state. And you all know that Bihar is a dry state. But still, hundreds of people die because of consuming illicit liquor. ABP News has done a sting operation where shocking reports have come out regarding this. We'll get to that part later. But have you people ever wondered, why do states in India ban alcohol? What's the reason behind it? Why do people die after consuming illicit liquor? Let's decode all of this today. So welcome to Clear Cut, only on ABP Live podcast. This is your newsman Rudrashish, and today let's talk about the Bihar hooch tragedy. So let's get started. So first, coming to the alcohol ban in some states. Why do some Indian states ban alcohol? Now, alcohol prohibition in India is enforced in the state of Bihar, Gujarat, Mizoram, Lakshadweep and Nagaland. All the other Indian states and union territories permit the sale of alcohol. The directive principle of state policy in the Constitution of India states that the state shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medical purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. The directive principles are not justiciable rights of the people, but fundamental in the governance of the country. It shall be the duty of the state to apply these principles in making policy laws as per Article 47. Now, as per Article 38, state and union governments as duty shall make further detailed policies and laws for implementation considering DPSPs as fundamental policy. National prohibition was advocated by Mahatma Gandhi as well as by many Indian women. Now, prohibition or ban of alcohol in the states of India that have implemented the policy has led to lower rates of drinking among men as well as a decreased incidence of violence against women. But does the ban of alcohol, the prohibition of alcohol really work? Now, according to socio-economic data of Bihar, within a year of prohibition, the number of murders and gang robberies decreased by 20%. The number of riots fell by 13% and traffic accidents were reduced by 10%. For the economy, spending per thousand rose, increase in the sales of milk by 10%, cheese by 200%, two-wheeled vehicles by 30%, and electrical appliances by 50%. But I should highlight that at the same time, substance abuse has increased significantly due to liquor being hard to access. But now you might be wondering, how does these illicit liquor cause death? Now, alcohol is produced by fermentation of grains, fruits or other sources of sugar. But when hooch is produced, when illicit alcohol is being prepared, harmful adulterations, harmful substances are added in the liquor to increase the potency. Harmful substances like battery acid, organic waste, methanol, all of these are added in the alcohol to increase the potency. And when this illicit alcohol is consumed,
they can prove disastrous for health. It can cause blackout, memory loss, and in worst case, death. And now to speak further on this, we have Mr. Brijesh Tiwari, who was part of the ABP News sting operation in Bihar, joining us on the show today. So welcome to Clear Cut sir. It's a pleasure to have you on the show. बहुत अच्छा लगा आपने अपना टाइम दिया शो के लिए. जी थैंक यू जी. Now sir, ABP ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है which is widely seen across all platforms. What did you find out in the sting operation? आपने स्टिंग ऑपरेशन में ऐसा क्या important facts, striking evidence निकाले? स्ट्राइकिंग एविडेंस में अगर हम देखें तो बिहार में पिछले 6-6.5 साल से शराबबंदी है. और हमेशा से जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेके नीतीश कुमार लगातार गाइडलाइंस जारी करते रहे हैं कि शराबबंदी है तो इसका पालन होना चाहिए. लेकिन स्थिति वहां पे ये सबसे बड़ी फाइंडिंग ये है कि इवन पुलिस से लेके और जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, विधायक हैं, उनको भी बखूबी ये पता है कि कौन कौन से माफिया एक्टिव हैं और क्या पूरा ट्रेल होता है, कैसे एक शराब बिहार में एंटर करती है बॉर्डर से, चाहे बंगाल से या यूपी से कैसे एंटर करती है, और उसको एंट्री कराते वक्त जो लोकल पुलिस है, जो कंसर्न पुलिस स्टेशन बॉर्डर्स के होते हैं, वो किस तरीके से वहां पे मौजूद रहते हैं. और पुलिस जो एक टोल फ्री नंबर भी बिहार गवर्नमेंट ने जारी किया है कि ये नंबर है और पब्लिक के लिए है कि अगर आपको कहीं भी शराब दिखती है तो आप उस टोल नंबर पे कॉल करेंगे. तो कई लोगों ने टोल नंबर पे कॉल किया लेकिन पुलिस नहीं आती है. जब वो बॉर्डर से क्रॉस कर जाती है शराब की पूरी खेप या ट्रक क्रॉस कर जाता है, उसके बाद पुलिस आती है. और कई बार तो ऐसे केसेस आए हैं कि जिन लोगों ने कॉल किया है उनके घर पे ही शराब माफिया पहुंच जाते थे. तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला था इसमें कि सिस्टम को सब कुछ पता है कि क्या कैसे चल रहा है और कौन कौन इन्वॉल्व है, लेकिन नीतीश से कहने की किसी की हिम्मत नहीं है. नीतीश से कई लोगों ने कहा भी कि हम शराबबंदी को लेके आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, सिस्टम के लोग ही इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने चाहिए. लेकिन नीतीश कुमार को लेके जो उन्हीं की पार्टी के लोग थे या विपक्षी थे, जो कभी बीजेपी उनके साथ सत्ता में थी, उन सब ने यही कहा कि नीतीश रिजिड है और वो नहीं चाहते हैं कि ये सिस्टम बदला जाए, यानी शराबबंदी में कुछ परिवर्तन किया जाए, कुछ चेंजेस किए जाए रूल्स एंड रेगुलेशंस में. तो वो चीजें नहीं हुई, जिसका नतीजा ये है कि सरकार को पता है, सिस्टम को पता है कि शराबबंदी है, लेकिन नेक्सस लगातार चल रहा है. और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके लिए अच्छी शराब है. और जो गरीब हैं, सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हुआ, क्योंकि गरीबों के लिए वो एक महंगी शराब वो खरीद नहीं सकते. तो देशी शराब पे वो लोग आए. देशी शराब पे आने के बाद अब उसी में चीजें आ रही हैं कि उनके पास कोई पैरामीटर तो है नहीं कि ये देशी शराब बनती कैसे है. तो देशी शराब वो घर पे बनाते हैं, या छोटे जो माफिया होते हैं शराब के, वो घर पे बनाते हैं, और जिसमें वो जहरीली हो जाती है. कच्ची शराब जिसको बोला जाता है, जहरीली हो जाती है. जो लोग वहाँ पीते हैं वो उससे मरते हैं. अब सर, बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, इन सब स्टेट्स में शराब बैन है, और शराब बैन करने के पीछे कारण होता है कि सोसाइटी सेफ रहे, स्टेट में क्राइम कम रहे. पर क्या आपको लगता है कि सही में शराब बैन करने से कोई बदलाव आता है सोसाइटी और स्टेट में? देखिए, बेसिकली अगर हम खास करके बिहार की बात करें, गुजरात में भी बैन है, बिहार में भी बैन है, लेकिन गुजरात में पूरी तरीके से बैन नहीं है. वो ड्राई स्टेट तो है, लेकिन जो आउटसाइडर्स जाते हैं वहां पे गुजरात में, तो उनके लिए अवेलेबल होता है, एक फॉर्मेट होता है, प्रोसेस होता है, उसके लिए मिलता है. जहां तक बिहार की स्पेशली बात है कि नीतीश ने सिर्फ इसलिए बिहार में शराबबंदी सिर्फ इसलिए लागू कराई थी कि महिलाएं बहुत ज्यादा आगे आ रही थी. जो शराब पी के जो लोग थे वो सड़कों पर हंगामा करते थे और कई क्राइम्स की घटनाएं बढ़ती थी. लेकिन इस शराबबंदी के बावजूद भी क्राइम ग्राफ पे कोई भी नहीं रोक लगी है. लगातार क्राइम वैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी, आपका मकसद ये था कि शराबबंदी हो जाएगी, लोगों की हेल्थ ठीक रहेगी और लोगों का जो सिस्टम है पूरा वो ठीक से चलेगा. लेकिन वो चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है वहां पे. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुद सरकार के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते. आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं. जैसे आपने गुजरात का एग्जांपल लिया, तो गुजरात में भी एग्जांपल है. वहां पे क्या है कि अगर आप डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देता है कि नहीं, इनके हेल्थ कंसर्न के लिए इतना जरूरी है, तो आपके लिए अवेलेबल है वो. बिहार में चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा किसी भी तरह की कोई प्रैक्टिस नहीं है कि कहीं अगर आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन भी देता है तब भी आपको अवेलेबल है.
तो ये इस सोच के साथ शुरुआत किया गया था कि क्राइम कंट्रोल होगा और शराब से होने वाली मौतें हैं वो कम होंगी। लेकिन ये मकसद अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अगर इसका अच्छे से होता, कहीं कोई क्लॉजेज होते हैं जो जिनके लिए जो एडिक्टेड हैं, जो हैबिचुअल हैं, जो एडिक्टेड है, उनके लिए अगर कुछ किया जाता सरकार की तरफ से तो शायद ये और अच्छी तरीके से आगे बढ़ता। लेकिन ये जो कमियां हैं, इन्हीं कमियों की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। जो रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट का, वो उसके सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। ओके, तो आपने जैसे बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस पूरे चीज में। खुलेआम जब ये जहरीली शराबें बिकता है और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे पता नहीं चलता, या वो जगह जगह सोते हैं ये कहाँ जा रहा है, तो इस पे चेंज कैसे लाया जाए? देखिए, चेंज का सबसे बड़ा ये सिस्टम ये है कि जब भी इस तरह का एक्शन हुआ है, जैसे अभी छपरा वाला जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें भारी संख्या में लोग मरे हैं, गोपालगंज में इसके पहले हुआ था, तो इनिशियल लेवल पे हमेशा कार्रवाई हुई है। यानी जो उस इलाके का जो कांस्टेबल, बीट कांस्टेबल है, उस पे एक्शन हो गया। इसके अलावा वहाँ एक जमादार नाम का एक शब्द होता है जो कुछ गांवों को मिला के एक अधिकारी बनाया जाता है, उस पे कार्रवाई हो गई, या ज्यादा से ज्यादा चौकी इंचार्ज पे कार्रवाई हो जाती थी और वो लेवल ऊपर नहीं बढ़ता था, वहीं तक चीजें करके खानापूर्ति के तौर पे कर दिया जाता था एक्शन लेके। लेकिन अगर इस पे मास लेवल पे एक्शन हो, जैसे अभी छपरा वाला पूरा मामला हुआ है, इसमें एसएचओ पे कार्रवाई हुई है, इसके अलावा जो डीएसपी हैं उन पे एक्शन लिया गया है। अगर यही बड़े लेवल पे एक्शन होता, डीएम पे एक्शन होता, एसपी है, एसएसपी है, उस पे एक्शन होता, अगर जो रूलिंग पार्टी है उनके कंसर्न, अगर उस इलाके का जो विधायक है उस पे अगर उसको सो कोर्ट नोटिस कोई भेजा जाता तो अधिकारियों में एक डर होता। अभी क्या है कि सिस्टम ऐसा है कि जूनियर लेवल पे कार्रवाई करने के बाद जो सीनियर जो अफसर ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें ये लगता है ये कार्रवाई अगर होती भी है तो नीचे वालों पे होगी, हम पे तो आँच आएगी नहीं। लेकिन जब ऊपर बैठा हुआ अधिकारी, उसको ये डर रहेगा कि हमारे ऊपर भी एक्शन हो सकता है, हम पे कार्रवाई हो सकती है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन उसको और पुख्ता तरीके से कराया जा सकता है। जो पटना में बैठे हुए अधिकारी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन पर कोई एक्शन होता है या उनसे कोई जो है नोटिस का जवाब मांगा जाता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपसे मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो इस तरह के अगर एक्शन स्टेप्स उठाए जाते तो नो डाउट पुलिस के अंदर डर होता। और डर के बाद जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का ये काम है कि वो अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाता कि आपको शराब कितनी आपके लिए नुकसानदायक है, जहरीली शराब मत पीजिए, अगर आप इतनी एडिक्टेड हैं तो आप आउट ऑफ द बॉर्डर जाके वहां पे स्टे करके, या जो भी ऑप्शंस होते हैं उसको प्रसारित किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता। उस चीज को नहीं किया गया, कुछ जगहों पे किया गया। अभी जैसे इंसिडेंट हुआ है तो अब लगातार छपरा और आसपास के इलाकों में इस तरह के एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन ये रेगुलर अगर हो जाते इस तरह के एक्शंस और कार्रवाइयां, तो इस तरह की घटनाएं रुकती भी और शायद ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी हो पाता है इसका। वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So that's all the news and scoops I have for you today. This episode was produced by Lalit. This is your newsman Rudrashish Kanjilal signing off. Have a wonderful day ahead and keep listening to ABP Live podcasts. This is an ABP Live podcast.